Welcome to my channel. I am Sudhanya Gupta. Now I am talking about few topic from Karl Marx theory, that is dividing lines, relationals, dialectics, conflict theory and changes, and conflict and contradiction. So these are the four topic. I am repeating once again: dividing lines, relational dialectics, conflict theory and changes, and conflict and contradiction. So let's start from dividing lines. So what is dividing lines? The above characteristics of dialectical reflects the views of Marx that there is no clear cut and hard and fast dividing line between phenomena of the local world. Various components of the social world bend towards one another. Marx gave a indication of capitalist and proletariat are not clearly reported but gradually blend into one another. इसका मतलब है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर इज, हम लोगों का जो सोसाइटी है वो सोसाइटी में देयर इज नो क्लियर कट लाइन ड्रॉ दैट इज कॉल्ड डिवाइडिंग लाइंस. बट हम लोग एक पर्सन अदर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिक्स ये सोसाइटी हमेशा चेंजेबल है. सो चेंजेबल है, नेचर भी चेंजेबल है, तो नेचर के साथ सरवाइव करने के लिए हम लोगों को एक के साथ और एक का, इसका मतलब है कि निर्भर होना पड़ता है दूसरे के ऊपर. सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर इज नो क्लियर कट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल, this is the dividing line. This particular persons are capitalist or bourgeois, and this particular persons are proletariat or laborers. But in the capitalist society, the bourgeois and proletariat are dependent to each other to survive and fight against the nature and to collaborate to each other to survive in our society. So this is the dividing lines. Now I am talking about the relational dialectics. Relational dialectics is a concept within communication theory. The concept could be interpreted as a knot of contradictions in personal relationship or an increasing interplay between contrary or opposing themselves. The theory defines communication patterns between the relationship patterns as the result of the endemic dialectical tensions. That means the relational dialecticals is the depend on the communication theory. Communication theory means हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल है वो उस स्टाइल के बारे में बोला गया है. अगर मैं एक दूसरे पर्सन के साथ बुरे तरीके से व्यवहार करूं तो वहाँ पर डायलेक्टिकल टेंशन, जो टेंशन स्टार्ट हो जाएगा वो है, उसको हम बोलेंगे डायलेक्टिकल टेंशन. वो टेंशन स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज द रिलेशनल डायलेक्टिक्स. अगर हम और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि डायलेक्टिकल थिंकर्स इज ऑल्सो take a relational views of the social world, relationship between the individuals, groups of people and subunit within the organization. All will come under the intense scrutiny of the dialectical thinker. So ये जो कम्युनिकेशन का जो बात है वो ग्रुप के साथ हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, और सोसाइटी के साथ हो सकता है. तो ये सब तो हो सकता है. तो ये क्या है? द सब यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द वर्ल्ड कम अंडर द इंस्टेंट स्क्रूटिनी ऑफ द डायलेक्टिकल थिंकर्स. तो डायलेक्टिकल थिंकर्स सब कम्युनिकेशन को एक ही अम्ब्रेला के नीचे, हम लोग जो बोलते हैं एक ही
छत के अंदर, अम्ब्रेला, दैट मीन्स वन अम्ब्रेला, एंड एवरीथिंग, ग्रुप, सब ग्रुप, पर्सन टू पर्सन, सब कुछ जो कम्युनिकेशन का जो स्टेटस है, सब कुछ को एक के अंदर लेके आना, इसको कहते हैं रिलेशनल डायलेक्टिक्स. So this is the relational dialectics. Next I am talking about the conflict theory and changes. Conflict theory, while the functionalism impress the stability, conflict theory impress changes. जब कोई भी फंक्शन, कोई भी काम एम्फसाइज होता है, दैट मीन्स द एम्फसाइज फॉर द स्टेबिलिटी, तब चेंज, कोई भी अगर काम, कोई भी अगर इंसिडेंट अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तब भी सोसाइटी चेंज हो जाता है. तब सोसाइटी क्या होता है कि चेंज हो जाता है. द कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेस एंड दैट conflict derives social changes. For example, conflict theories might explain the civil rights movement in 1960 by studying how activities challenged the unequal distribution of the political power and economic resources. So दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब है कि 1960 में जो सिविल राइट्स के ऊपर जो मूवमेंट हुआ था, वो हम सब कुछ स्टडी करने के बाद जो चैलेंज आया था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो उससे हम जो समझ गए थे, उसके ऊपर ही, ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक जो रिसोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वो सब कुछ. एज इन दिस एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट थियरीज जनरली सी सोशल चेंजेस एंड अडॉप्ट इवन रेवोल्यूशनरी rather than the incremental. That means this conflict theory means conflict कब होता है, रेवोल्यूशन कब होता है, कब सब कुछ चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद नहीं, अगर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो तभी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है. क्यों रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, क्योंकि इतना दिन से जो सिस्टम चल आ रहा है, तो उसके वो सिस्टम के प्रति, कुछ भी सिस्टम हो, वो सिस्टम के प्रति हम लोग जो वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग उसके अगेंस्ट जो बोलते हैं, अगेंस्ट, जैसे कि सिस्टम अगर ए हो तो हम लोग जेड बोलते हैं कि जेड के ऊपर से सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि जेड होगा. सिस्टम ए है, ए के तरह से सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जेड के तरह से अगर सिस्टम चले तो सिस्टम और भी बेहतर होगा. तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, टू व्यूज. In conflict theory there is two views, one views is opposite to another views. This is the conflict theory. And now I am talking about the conflict and contradiction. Dialectical thinking also has involved considerable concern about the conflict and contradiction, emphasize ideas of the social changes and how the social entities explain the far of the harmonious way. One key emphasis was the relationship that between the key economy of the actions of our era. That means the conflict and contradiction. That means हम लोगों का जो एरा, एक एरा के अंदर जो rather than stability, जो एरा के अंदर जो चेंज आ रहा है, चेंज, वो कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्शन होने से ही वो चेंज आ जाता है. वो जो चेंज है वो कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्शन के चलते ही आता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं आता है. Dialectical thinkers are generally interested to structure on society and actors within the society and relationship between them. Dialectical thinkers जो होते हैं वो
सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके एंड उसके ऊपर बेस करके जो एक्शन होता है, एक्शन के ऊपर बेस करके ही रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एंड एक्शन, ये दोनों का रिलेशनशिप वो बोलते हैं, डायलेक्टिकल दो थिंकर होते हैं. तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन. सो प्लीज कीप watching, please subscribe my channel, and till then, goodbye.